Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. Today's point of discussion will be Section 8 of Criminal Procedure Code 1973, which dealt with the concept of metropolitan area. So we will discuss all the concept relating to the metropolitan area under this particular lecture and the question asked by the examiner on this particular lecture, as well as the question which may be asked by the examiner. ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है सेक्शन 8 पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मेट्रोपॉलिटन एरिया. So section 8 of Criminal Procedure Code 1973 dealt with the concept of metropolitan area. So the section 8 subclause 1 deals with the state government may declare any area whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area. So the state government is having a power to declare any area as a metropolitan area whose population exceed 1 million. ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसे एरिया को स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है. सो स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. देन सब क्लॉज 2 डील्स विथ the presidency towns of Bombay, Calcutta, Madras and Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area. तो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स है बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और अहमदाबाद, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है. तो यहाँ पर सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि वो एरिया भी सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में ही डिक्लेयर हुए मेट्रोपॉलिटन एरिया कंसिडर किए जाएंगे. सब क्लॉज 3 सेक्शन 8, the state government may extend, reduce or alter the limits of a metropolitan area, but it shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million. So the state government is having a power as per provision of section 8 subclause 3 to extend the limit of metropolitan area, to reduce the limit of metropolitan area, as well as to alter the limit of metropolitan area. But while reducing the limit of metropolitan area, the state government should consider one thing, that the population of that area should not reduce to 1 million. तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, तो और उसको अल्टर भी कर सकती है. मतलब कुछ एरिया डिलीट करके कुछ एरिया मिला भी सकती है उसमें. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब ये काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम ना हो. अगर वो एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो गई तो वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा ही नहीं. सो दैट इज द प्रोविजन सेक्शन 8 सब क्लॉज 3. नाउ सब क्लॉज 4, ए पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया falls below 1 million, the state government may declare that such is not non-metropolitan area. Suppose while altering the limit of metropolitan area, while reducing the limit of metropolitan area, if the population of that area reduced to 1 million, below to 1 million, then the state government will declare that particular area will be a non-metropolitan area. तो जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट को रिड्यूस कर रहा है और रिड्यूस करने के बाद उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो गई, 1 मिलियन से कम हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट वो एरिया को नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगा सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 के हिसाब से. नाउ सब क्लॉज 5,
If state government reduce or alter under subsection 3 the limits of any metropolitan area will not affect any inquiry, trial or appeal pending before any court or magistrate. अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट को अल्टर भी करता है सब क्लॉज 3 के हिसाब से, तो ऑलरेडी अगर कोर्ट में कोई इंक्वायरी, ट्रायल या अपील पेंडिंग होगी तो उस अपील को, उस इंक्वायरी को, उस ट्रायल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टरेशन के वजह से। तो ये क्लियर किया 8 सब क्लॉज 5 में। नाउ explanation. In this section, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. तो यहाँ पर जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस रहेगा, फॉर एग्जांपल जो 2011 का सेंसस हुआ था वो कंसिडर किया जाएगा पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हुए। दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 8। नाउ probable question maybe asked by the examiner on section 8 is, who has the authority to declare any area as metropolitan area under section 8 of Indian Evidence Act? State government, central government, governor or all of these? तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि हम सेक्शन 8 का अगर प्रोविजन देखें, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर, सो ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग अ पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट राइट आंसर है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 8 में पावर है किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने का। हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स द मेट्रोपॉलिटन एरिया अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? किसको पावर है एक्सटेंड, रिड्यूस करने का? दैट इज ऑल्सो, यहाँ पर हम देखें द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट को ही राइट है और पावर है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट को अल्टर कर सकती है, उसको रिड्यूस कर सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकता है। So this is the section 8 of criminal procedure code. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.